So I'm going to be reading a poem from my book. This is about the societal pressure and standards that are expected from women before they get married. It is part of two poems in the book. It's called What Was Said When He Fell in Love. She can't even cook bhindi. She drinks tequila. Look at her gulping one shot after the other. Why is this guy hugging her on Facebook? Hot pants, short skirts, that's all she's wearing. Does she even own a sari? There she goes again. She likes her job more than you. You're innocent, beta. I have seen the world. Your love won't last. Your promises won't be kept. You've had your fun now. I only care about you and your happiness. I will choose someone for you. This is an ABP Life podcast. Well, hello ladies and gentlemen, boys and girls. आज कॉफी के साथ इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करेंगे. Failure to Make Round Rotis is a book I am holding in my hand. Poems on rebellion, resilience and relationships by Mehak Goyal. Here is Mehak Goyal in front of you. Hello Mehak, how are you? Hi, I'm doing well, Abhi. How are you doing? यार सबसे पहले जो टाइटल है ना, ये बहुत मजेदार है. ये मेरे जीवन का सत्य है. मेरे से रोटी मतलब आटा मारना आता है, रोटी बेलना नहीं आता. What exactly the book is all about? I'm sure ये मेरे struggles की कहानी नहीं है. It has something like a deeper meaning attached to it. I think our पहले बंदे या male, if I could say that, who's actually said something about the title till now, because every girl that I go to or every woman that I go to, they said I've lived this life. Because unfortunately, no matter how young, old you are, the worth of a woman in India today is determined or is directly proportional to the roundness of her rotis. So I actually wanted to highlight जो आजकल दर्द चल रहा है सबसे ज़्यादा for women in India. And ये इतना normalize हो गया है ना कि कोई दूसरी बार देखता भी नहीं है इन चीज़ों को. जैसे एक और चीज़ है कि यार हमारे मतलब in India beauty is fairness. True. चाहे अभी जाके मतलब it's been so many years कि Fair and Lovely has changed its name now. And तब भी इधर like कि brightening ये वो कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है. तो ये वाली छोटी छोटी चीजें हम इतनी normalize कर दी हैं unfortunately in our life कि लोग दूसरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते. और normalization से trauma और बढ़ रहा है. Trauma और बढ़ रहा है. And unfortunately आज की generation में क्या हो रहा है कि लड़कियों को अगर राउंड रोटी भी बनानी पड़ रही है, उनको काम पे भी जाना पड़ रहा है, उनको घर भी संभालना पड़ रहा है, उनको काम भी देखना पड़ रहा है, उनको फैमिली भी देखनी पड़ रही है, एंड फिर उनको सुपर वुमेन का ग्लोरिफिकेशन दिया जा रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हो. आई थिंक हमें कहीं ना कहीं नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज नॉट फेयर टू वुमेन एंड मेन. आई फील कि देयर नीड्स टू बी अ शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी towards household हो जाए, towards job हो जाए. That is how we will progress in life, and that is what this book is about. कि we need to change the narrative going forward. Since you mentioned that there should be sharing of responsibilities, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के. But what kind of responsibilities in general? मतलब एकदम bluntly बोलना, what kind of responsibilities should every guy share? And this is a message to all the boys and men who are watching this episode now. क्या responsibilities हर इंसान को शेयर करना चाहिए एक मैरिड लाइफ में या इन जनरल मैरिड लाइफ ना भी हो, बहन भाई के साथ भी तो शेयर कर सकती है. बिल्कुल. यार आई थिंक इट शुड बी अ 50-50% रिलेशनशिप. आई हैव अ ब्रदर हु इज 1 year younger to me. मेरी मॉम ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तू रोटी बनाना सीखेगी और ये नहीं सीखेगा. तो हमारा ऐसे होता था कि अगर लंच में वो रोटियां सेक रहा है तो डिनर में मैं सेकती थी. So cool. तो मतलब आई थिंक फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे फेमिनिज्म ऑलरेडी था, बट दिस वाज ओनली पार्ट ऑफ माय इमीडिएट फैमिली. जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो आई स्टिल रिमेम्बर, आई कांट इवन, वो आते थे और कहते थे कि यार लड़के से क्यों ये काम करवा रही है, राइट? उसके पास तो कल आज है महक एंड फिर कल कोई उसकी वाइफ आ जाएगी जो कर लेगी ये वाले काम. तो मेरे को बहुत मतलब चिढ़ मची थी उस बात से कि यार ये फेयर नहीं है. एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कुछ भी
सकते हैं यार, घर का सिंपल सा काम हो सकता है, चाहे वो आप कॉफी पी के सिर्फ कप रखना है। सही बात है, हाँ राइट। ये इन जनरल एक सोसाइटी में मैंने एक चीज बहुत रिग्रेसिव नोटिस किया है, कई लोगों को बोलेंगे तो शायद उनको बुरा भी लग सकता है कि खाने के बाद हमेशा औरतें टेबल से प्लेट लेके जाएंगी। क्यों भाई, आप अपना प्लेट खुद क्यों नहीं ले जा सकते? इतना क्या ईगो पे हर्ट हो रहा है? और मतलब आई मे आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट पेट्रियार्कल सोसाइटी, मैं भी उसका एक छोटा सा फ्लैग बेयर हो सकता हूं, बट आई रियली वांट टू चेंज दैट। मतलब एटलीस्ट इस चीज से शुरुआत तो कर ही लेनी चाहिए कि एटलीस्ट प्लेट अपनी ले जाके सिंक पे रख दो यार। मतलब धोएगा कौन, वो सब तो दूर की बात है, धो भी लेना चाहिए कभी कभार खुद। लेकिन नहीं, इवन सिंपल मैटर जैसे अगर हमारे फ्रेंड्स आए होते हैं एंड कुछ कपल्स होते हैं, कुछ सिंगल पीपल होते हैं ओवर अ वीकेंड, राइट? तो उसमें क्या होता है कि पहले वील से वी ब्रिंगिंग स्नैक्स नाउ, या अगर हम खाना लेने जा रहे हैं तो एज अ रूल सारी लड़कियां उठेंगी, किचन में जाएंगी, जिसकी भी किचन हो, मेरी भी हो सकती है, मेरी किसी फ्रेंड की भी हो सकती है, फिर सारी लड़कियां वापस आके फिर खाना रखेंगी टेबल पे। ओके मेरे उल्टा सीन है, मुझे लग रहा सब काम मैं ही कर रहा हूँ क्या? नहीं ऐसा मतलब ठीक है, सभी करते हैं। नहीं बट कुडोस टू यू मैन, देन अगर आप, मैं बचपन से खाना बना रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक्सेप्शन हो सकता, मतलब मेरे अलग रीजन से बचपन से खाना बनाने के। बट हाँ, मुझे रोटी बनाने नहीं आती, दैट इज द ओनली थिंग आई डोंट नो इन कुकिंग। मुझे रोटी पराठे बेलना बिल्कुल नहीं आता, सो आई कैन टोटली रिलेट टू दिस बुक। मतलब इसके दूसरे कॉन्वर्सेशंस है। बट व्हाट मेड यू राइट दिस बुक? So this is kind of a little sad story, but मैं जितना happy हो पाए उतना कर पाऊँ। ठीक है जरूर, तो I was a please have coffee, water, whatever you feel like. It's a very candid conversation. जो मन करे please बोलते रहना। So I had a startup about 3 years ago, doing very well. 4 years into the startup, it was about luxury lighting, and I had expanded it from Chandigarh to Punjab to Delhi NCR. Even was doing really good projects. तो उस टाइम पे ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली फ्रीक इंजरी हो गई नी में, तो आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर अबाउट 6 months. तो मेरे को उस टाइम पे अपना स्टार्टअप कंप्लीटली क्लोज करना पड़ा. अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव अ को-फाउंडर विद मी हु कुड हैव टेकन इट फॉरवर्ड, बट आई हैड टू क्लोज डाउन द स्टार्टअप व्हिच वाज लाइक अ बेबी टू मी, एंड आई वेंट थ्रू अ रियली बैड ब्रेकअप कि थोड़ा क्लीशे में आ जाता है. बट फिर उसके बाद पोइट्री पढ़ना शुरू करा मैंने. अगर मैं फिक्शन या नॉन फिक्शन पढ़ती थी उसमें ये होता था कि यार 100-200 पेजेस के बिना यू डोंट रीच द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उतनी पेशेंस थी नहीं उस टाइम पे, क्योंकि आई वाज एट अ वेरी लो फेज. तो आई वाज लाइक यार अभी मेरे को 5 मिनट के अंदर अपना मूड कैसे अप करना है. तो पोइट्री जैसा मेरे को कोई और माध्यम मिला ही नहीं उस टाइम पे. तो फिर मैंने पोइट्री पढ़ना शुरू करा. तो मेरे को लगा यार ये कितना इजी है. तुम 5 मिनट या 2 मिनट भी हो आपके पास एक दिन में, आप एक पोएम पढ़ोगे, उससे आपका पूरा मूड चेंज हो सकता है. आप मोटिवेट हो जाओगे, आप यू लुक एट द पॉजिटिव्स ऑफ लाइफ. So small little words have altogether a different meaning and they'll change your mood instantly. Exactly. तो वो पढ़ना शुरू करा. उसके बाद लिखना भी तभी शुरू करा. एंड fortunately when I started writing it, I started submitting to national and international magazines. Within a couple of months my poems were already in the best of magazines around the world. And these are like, if you can name? Sure. Remembering Childhood hai, A Letter to Introverts hai. Oh, wow. So there are specific poems in the book जो सिर्फ introverts के लिए बनाई है मैंने, क्योंकि Are you an introvert? Yes. अच्छा, मतलब लगता नहीं आपसे बात करके although, but ठीक है, if you say so. I like to say कि मैं ट्रेन हो रही हूँ एक्सट्रोवर्ट होने के लिए, but in heart I will. But that I have a question in mind. ये अक्सर इंट्रोवर्ट से मैं पूछता हूँ कि यार आप मतलब ऐसा क्यों है, मतलब why don't you cherish introvertness? नहीं एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है. सब एक्सट्रोवर्ट क्यों बनना चाहते हैं? कुछ लोगों को इंट्रोवर्ट भी रहना चाहिए, वो भी अपनी खासियत है, उसमें कोई बुराई थोड़ी इंट्रोवर्ट होने में. इसकी ना मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम है क्वाइट. तो वो बंदी मतलब आई थिंक सोसाइटी प्रोजेक्ट करती है अगर आप एक्सट्रोवर्ट ना हो तो आप में कुछ कमी है. बट दैट इज बुलशिट. आपको नहीं लगता कि अगर लेट्स से कि हम जब आई रिमेम्बर जब हम छोटे बच्चे होते थे, राइट, तो अगर मम्मा पापा बोलते थे जाओ अभी कोई आया है तो बात कर लो, पोएम सुनाओ. क्यों शाय क्यों हो रहे हो तुम,
हमारे जानने वाले हैं, आप बात करो, कंफर्टेबली बात करो। एंड सबका डिफरेंट वेवलेंथ होता है, मैच करे ना करे, आप बात कर पाओ नहीं कर पाओ। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हमें फोर्स किया जाता है एक्सट्रोवर्ट होने के लिए, चाहे आप ना भी हो। एंड कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट इज फ्राउंड अपॉन। उनको लगता है बचपने में तो चलिए ठीक है, इसलिए किया जाता कि एटलीस्ट कभी स्टेज में जाएगा तो बोल पाएगा, एटलीस्ट आइस ब्रेक कर पाए। बट ओवर एक एज के बाद सबको अपनी रियलिटी पता रहती है। सम पीपल वांट टू बी इन अ शेल, दे फील पीस देयर, दे फील मोर एम्पावर्ड। जैसे माय डैड वाज एक्सट्रीमली शांत इंसान, ऑन द ऑपोजिट मैं पूरे दिन बकवास कर सकता हूँ। तो बट मुझे नहीं लगता उसमें कोई खराबी है। ठीक है, कई लोग शांत हैं, उनको अपना स्पेस देना चाहिए, राइट? हाँ ठीक है। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, एंड आई कैन रीड द पोएम आल्सो। तो इंट्रोवर्ट का मैं ऐसे ही डिफरेंशिएट करूंगी, जैसे अपनी मीटिंग भी चल रही है किसी हॉल में, राइट? अपना को-फाउंडर खड़ा हुआ है, 5-6 बंदे हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप सबसे पहले हाथ उठा के बोल दोगे कि मेरे पास ये आइडिया है, ठीक है? आप सोचोगे नहीं अच्छा है बुरा है क्या है, बस बक दोगे। हाँ जी। इंट्रोवर्ट होएगा, वो कहेगा यार शायद नहीं अच्छा मैं बाद में देख लूंगी, कल पक्का मैं प्रिपेयर करके आऊंगी, उसके बाद बोलूंगी, अच्छा नहीं मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद मैं को-फाउंडर के पास जाऊंगी, उसके बाद आराम से उनको अपना आइडिया बताऊंगी। तो उतना ही डिफरेंस है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में। पर क्या ताकत है इंट्रोवर्ट की? चलिए आज इस पे बात करते हैं। कुछ तो होगी यार, बिकॉज हम जैसे लोग जो पूरे टाइम बकवास करते हैं, हम कुछ भी बक देते हैं, हम कभी सोचते नहीं है, कोई फिल्टर नहीं होता। आप लोगों में फिल्टर जरूर होता है, आप लोग सोच समझ के बुद्धि लगा के बोलते हो, हम लोग कुछ भी बक देते हैं। क्यों? I don't think I really think extrovert is being very brave. क्यों? अगर आप किसी को अपनी ओपिनियन दे रहे हो और आप परवाह नहीं कर रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, दिस इज एक्चुअली ब्रेवरी, राइट? बट ब्रेवरी तब होगा जब आपको पता हो कि अच्छा अभी ना जैसे सामने शेर खड़ा है और मुझे शेर के पास जाना है और मैं चला गया, वो ब्रेवरी है। जब मुझे पता है शेर मेरे घर की पली हुई बिल्ली है और पूरे दिन घूम रहा हूँ, तो ब्रेवरी थोड़ी होगी, वो तो टॉक्सिक ट्रेट है बोल लो आप। मतलब टॉक्सिक ट्रेट बोलना गलत है, बट पॉइंट है वो ट्रेट है हमारा, हम पूरे दिन ही यही करते रहते हैं ना। नहीं, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि ब्रेवरी है, बिकॉज हमें बहुत टाइम लगता है सोचने समझने में कि यार हमें अब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उसको कैसा लगेगा, अब ये ठीक है या नहीं है, पर मेरा आइडिया अच्छा होएगा या नहीं होएगा, उसने सबके सामने डांट दिया या बेइज्जती कर दी तब क्या होएगा। तो इंट्रोवर्ट की ट्रेट मेरे को ये लगती है कि यार हम अपने शेल में, चाहे वो हमारा एक बुक हो, चाहे वो हमारे घर में एक स्पॉट हो, चाहे वो गार्डन में एक स्पॉट हो, हमें कुछ और नहीं चाहिए होता अगर वो हमें स्पॉट मिल जाए। एंड आई थिंक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटी इन दैट एज वेल। ट्रू, मेक सेंस। व्हाट इज द फेवरेट चैप्टर ऑफ दिस बुक? मेरा फेवरेट चैप्टर है इसमें इंडियन मैचमेकिंग के बारे में। अच्छा। तो इसमें 8 सेक्शंस हैं, आई जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो चाइल्डहुड से शुरू होती है ये। तो चाइल्डहुड में सबका ही अच्छा चाइल्डहुड होता है, बुरा चाइल्डहुड होता है। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब आपके पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा बन रही होती है, कई बार नहीं बन रही होती। एंड एवरीबडी आई फील हैज गॉन थ्रू बुलिंग इन देयर लाइफ। एंड वी केम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे लेस वाज मोर। हमें पता ही नहीं था यार आईफोन अच्छा है, हमारे पास नहीं है, फोन कौन सा, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है हमारे पास, इसलिए कलेश कम थे। आई स्वेयर हमारे को पता ही नहीं था कि ये बैट बॉल भी है, ये ब्रांडेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अमेज़न पे किसकी रेटिंग हाई है, वही वाली प्रोडक्ट है। हम बचपन में जिससे कपड़े धोते जो हमारे एमपी से उसको मुगरिया बोलते हैं, जिससे वो बैट टाइप का होता है, हम उससे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। सो जुगाड़ थी हमारी। हम जुगाड़ था, सब कुछ जुगाड़, हमारा बचपन जुगाड़। ट्रू। उसके बाद देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड अडल्टिंग, जिसमें स्पेसिफिकली ये बात करी गई है कि हम जब अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होता है। हम दुनिया देखते हैं, हमें लगता है कि यार जो हमारे पेरेंट्स ने अभी तक सिखाया वो ठीक था, हो भी सकता है ठीक हो भी सकता है ना हो सकता है कि हम बाहर जाए और हमें लगे कि यार दुनिया इतनी बड़ी है और हमें अपने लिए सोचना सीखना चाहिए। तो अडल्टिंग उस बारे में है। उसके बाद हार्ट ब्रेक सेक्शन है। इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट ब्रेक हैं। जैसे मैं डेट पे जाना चाहती थी पर वो लड़का शो अप ही नहीं हुआ। फिर कोई यार अक्सर उल्टा होता है, लड़कों के साथ होता है। मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई लड़की बोल रही है कि मैं डेट पे गई और लड़का नहीं आया। ओके।
और Every day is a new learning, I see. ठीक है. और उसके बाद कि अगर लेट्स से अगर इफ आई जज समबडी कि यार वो बहुत सुंदर है पर उनका बिहेवियर उतना सुंदर नहीं था मेरे लिए, फिर देयर आर सेवरल पोएम्स इन दिस वेयर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से अगर आपका हार्ट ब्रेक होता है तो वो हार्ट एक कितना बड़ा होता है और उसको उससे मूव ऑन कैसे कर सकते हो. माय बेसिक पॉइंट इन राइटिंग दिस सेक्शन वाज कि यार एनीबडी हु हैज बीन इन लव हैज बीन थ्रू हार्ट ब्रेक. वो मतलब इट इज as black and white as that. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला. जी. हाँ जी. आगे. So अच्छा ठीक है. Certainly there are 8 chapters. We'll talk about it. But since the title के नीचे जो subtext है that says poems on rebellion, resilience and relationships. I would love to know more about this. हाँ जी. तो रिबेलियन वाला फेज जो है आई फील कि वो हर लड़की और लड़के की जिंदगी में भी आता है. लड़कियों के में शायद ज्यादा आता है क्योंकि हमें थोड़ा सा और ब्लॉक करके रखा जाता है कि यार तुम ऐसा खा सकते हो, ऐसा ये कपड़े नहीं पहन के जा सकते, हाँ ये तुम रात को घर के बाहर नहीं जा सकते, तुम जीन्स टॉप नहीं जा सकते, नहीं अब सूट पहनो, अब मेकअप ना लगाओ, so many things, right? And उस चीज में भी कि लड़कों को होता है बट लड़के यार rebel without a cause. So मैं ये नहीं कहूँगी. I've met so many guys till now. मतलब you're lucky. नहीं मतलब I don't want to मतलब I don't want to assume anything with you also कि most of the time लड़कों को एक बॉक्स में तब डाला जाता है जब उनका करियर की बात आती है तो वो कभी भी अपना पैशन नहीं फॉलो कर पाते बिकॉज ब्रेडविनर होना या टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है. टचवुड इस मामले में मैं शायद लकी रह गया कि थोड़ा सा जो टिपिकल इंजीनियर या डॉक्टर बनना है उससे थोड़ा सा अलग हो गया कि नहीं करना है तो नहीं करना है. बट हाँ बहुत सारे लोग यू आर राइट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते. हाँ जी. तो इनफैक्ट जिसने ये सारी ड्राइंग्स भी ड्रॉ करी हैं इसमें काफी सारी ड्राइंग्स हैं एंड आई कैन शो यू माय फेवरेट ड्राइंग आल्सो फ्रॉम द बुक. सो क्यूट. तो इसमें बेसिकली यही है कि यार ही ऑल्सो वॉज एन आर्किटेक्ट. इसने 4 साल आर्किटेक्चर में करे, इसका बिल्कुल मन नहीं था एंड देन ही इज लाइक कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूं. शिखर धवन. शिखर धवन. शिखर बॉस. शिखर भाई यू मेक अमेजिंग पेंटिंग्स. बहुत प्यारा है यार, बहुत ही ज्यादा सुंदर है. एंड ये these are illustrator या तो उसने फिर डाइवर्सिफाई करा बिकॉज वो ये कि एक बार जब कितना रिबेल उसमें भी हो सकते हो आप करियर में भी, पर आई फील कि लड़कियों को हर चीज में रिबेल करना पड़ता है, नॉट जस्ट करियर. एंड अगर किसी लड़की का पैशन हो कि यार मैंने कुछ ऐसा करना है, फॉर एग्जाम्पल इवन अ बुक राइटिंग राइट, कि उसमें पैसे नहीं है, हाउ आर यू गोना अर्न मनी, दैट विल बी द सेम फॉर अ गर्ल एंड अ बॉय. बट कुछ ज्यादा रिबेल होना पड़ता है इन चीजों में जिनमें रिबेल करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए. एज सिंपल एज दैट कि आई नो सो मेनी फ्रेंड्स कि जो अपने घर से बाहर निकलते हुए उनके पेरेंट्स बोलते हैं तो ड्रेस नहीं पहन के जा सकती, और ड्रेस पहनेगी तो उसके नीचे पजामी पहननी पड़ेगी. तो फिर वो जैसे ही घर से चाहे कितनी भी लंबी हो ड्रेस एंड वो घर से बाहर निकल के दे गेट सो स्कैर्ड कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होएगा, कि वो पजामी पहन के फिर कॉलेज में जाएंगे या कहीं पे भी, मतलब उनको कहीं पे ऑफिस में भी आना है. तो आई फील उतनी रिस्ट्रिक्शंस किसी पे नहीं होनी चाहिए, हेंस द रिबेलियन. रेजिलियंस क्योंकि 90s किड होने के कारण आई फील कि हम यार बहुत रेजिलियंट थे अभी. हमें पता ही नहीं था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. हम अपने वेब में रहते थे. एक कार्टून नेटवर्क उस टाइम पे शुरू हुआ था, उसको देख के टॉम एंड जेरी ने पूरी जिंदगी हमारी सही कर दी. बस वही जिंदगी है और क्या चाहिए. एग्जैक्टली. तो वही कि आई फील कि हर चीज आई डोंट थिंक वाज पुट ऑन अ प्लेटर फॉर अस. हमें हर चीज के लिए काम करना पड़ा है, तो उसीलिए रेजिलियंस भी हमारे पास आई है. रिलेशनशिप क्योंकि हर पोयम में आई हैव ट्राइड कि कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो डैड डॉटर की हो, चाहे वो सिबलिंग्स की हो, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली ग्रैंड मदर विद ग्रैंड डॉटर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स एट इवन द स्टार्टअप वर्ल्ड हो. तो
तो आई हैव ट्राइड टू नेविगेट कि यार डिफरेंट रिलेशनशिप्स को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, वो मेरी कोशिश थी इस बुक में. That makes sense. What is your message to all those people, or especially those men who are watching you right now? How to make the life easy for all the women in their life? I think don't wait for us to ask you. अगर आपको लगता है कि यार ये कप उठ जाना चाहिए था, तो प्लीज पिक इट अप. अगर आपको लग रहा है कि वो कपड़ों का पाइन बहुत बड़ा हो जा रहा है, प्लीज कपड़े धोने में डाल दो. अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ या आपकी बहन को या आपकी फ्रेंड को आपकी हेल्प की जरूरत है, शी इज इन अ टफ स्पॉट, प्लीज रीच आउट टू हर, टेल हर दैट यू आर देयर फॉर हर. Sometimes, even just the fact that you're sitting here listening to somebody and telling someone कि यार मैं आपके साथ खड़ा हूँ या मैं आपके साथ हूँ, that makes all the difference in the world. आपको शायद उसके बाद एफर्ट करने की भी जरूरत ना पड़े. सही बात. On that note, बहुत शुक्रिया for talking to us. I really hope that this book changes a lot of perception. एटलीस्ट बहुत सारे मर्दों की लाइफ का परसेप्शन थोड़ा चेंज हो, और शायद ये थोड़ी इक्वालिटी की और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो थोड़ा जितना ब्रिज हो सके वो गैप उतना हो सके, और हम थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की ओर जाए. बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट. थैंक यू.